Today we will discuss about the pumping lemma for CFG. Already we learned this pumping lemma theorem in the regular expression. Already I taught, and I think you guys know how to solve problem based on the pumping lemma for the regular expression, or you can say regular language. But here we are going to discuss the pumping lemma theorem for the context-free grammar, or you can say context-free language also. So procedure is same, whatever we learn in the regular expression, the same procedure we are going to follow here, but there we have proof for what type of languages. We use generally pumping lemma for to prove that the given language is not regular. The same way here, some problems which we are unable to solve by the context free grammar, that we are going to prove that the given grammar, or you can say given language, is not context free language. So that is the reason we are going to use the pumping lemma for the context free grammar also. So we will discuss some more problems also. Just now I am going to discuss this definition of the pumping lemma. Okay, what is the use and how we will do by this the problem. So now first of all, the same thing what we have learned in the regular expression, one language is given and then we consider that this language is nothing but the regular, and finally and end of the solving the problem, at the end of the problem we can say that we get the contradiction. हमें contradiction मिलता है कि हम लेके चले थे कि that language is regular, but finally we got that कि that is not a regular, and then that is nothing but the proof of the pumping lemma. Now यहाँ पे भी same वही हम काम करेंगे. Now let's hear the given is what if L is a CFG. I mean let's take any language. For that I am taking here suppose a to the power n, b to the power n, c to the power n, such that n is greater than equal to 0. Let's take this is the language here. तो what I'm कि this is the language, यहाँ पे हमने assume किया कि this language is a CFG, that means context free grammar. Then L has pumping length P. I mean I will take any one string from this language, because this language generates a number of string, that you can say infinite string here. So now this language generates number of string. Take any one string and pump one particular alphabets. Pump का मतलब है कि हम यहाँ push करेंगे, और you can say stretch करेंगे, कि हम किसी चीज़ को, जैसे आप कह सकते हैं इलास्टिक या रबर, कि हम किसी चीज़ को प्रेस करें तो उसकी इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि लेंथ हम इंक्रीज करेंगे. यहाँ पंपिंग का मतलब है in case of the string we are going to increase one particular string, one particular symbol out of the given string, कि उसे हम पंप करके उसकी लेंथ बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के बाद भी हम चेक करेंगे कि जब वो नई स्ट्रिंग जनरेट होगी आफ्टर द पंपिंग, विल इट ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस गिवन लैंग्वेज और नॉट. If it is not belonging to this language, then we will say कि this language is not context free language. तो now यहाँ पे L एक CFG है, then L has pumping length P. P आप कुछ भी ले सकते हैं, X, Y, Z, anything. Here I have taken the P, कि उसकी जो pump length है वो हमने P ली है, such that any string W means इस लैंग्वेज में से कोई भी एक स्ट्रिंग ले लें. व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इट विल जनरेट हियर. अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो एप्सिलॉन आएगा, 1 रखोगे n की वैल्यू तो ABC आएगा, 2 रखोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, एंड सो सपोज करो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मैंने ले लिया, तो दैट मीन्स W इज नथिंग बट हियर a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, दैट इज अ W हियर. तो यहाँ पे कह रहा है कि W टेक एनी वन स्ट्रिंग W विच बिलोंग्स टू L वेयर mod W, the length of W अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें then it is nothing but the 6. Why? 2 times A, 2 times B, 2 times C, that is nothing but the 6 हो जाएगा. Length of W अगर हम निकालें, this length of W must be greater than equal to P, and P क्या होगा I will tell later when we solve the problem. but यहाँ पे जो अगर हम कहें इस string में तो P equal to 2 होगा, because हमने n की वैल्यू जो चूज करी है इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वही हमारा यहाँ पे P होगा. तो आपने यहाँ पे n की वैल्यू इस स्ट्रिंग के लिए जो चूज करी है दैट इज नथिंग बट 2, और जो आपकी लेंथ है इस स्ट्रिंग की जो लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे कंप्लीट स्ट्रिंग की करेंगे दैट इज 6. तो आप देख सकते हैं 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू P. तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि लेट्स टेक एनी वन स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन लैंग्वेज W
देन आई टू चूज हियर W बिलोंग्स टू L, एंड इस W का जब हमने लेंथ निकाला दैट मस्ट बी, दैट मीन्स वॉट एवर स्ट्रिंग यू आर चूजिंग दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू W। तो जो भी P हम यहाँ रखेंगे वो हमारे W से छोटा होना चाहिए। नाउ मे बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, आई मीन हमने जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे चूज करी है W, अब हम यहाँ पे फर्दर काम करेंगे, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एंड दैट 5 पार्ट्स नेम इज U V X Y Z। यू कैन टेक हियर ABCDEFG भी ले सकते हैं, यू कैन टेक एनीथिंग। तो हमने यहाँ पे ले रखा U V X Y Z, एंड ऑलरेडी यू लर्न इन द रेगुलर एक्सप्रेशन, आपने वहाँ पे देखा था कि हमने स्ट्रिंग को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स में। दैट मीन्स एक्स वाई जेड हमने 3 वेरिएबल लिए थे, बट इन केस ऑफ द CFG वी आर गोइंग टू डिवाइड इनटू द 5 पार्ट्स। तो ना अब हमारे पास ये 5 पार्ट्स है, इसकी कंडीशंस है कि अगर हमने स्ट्रिंग को यहाँ पे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, व्हाट इज द कंडीशन विच इट सेटिस्फाई, फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी ट्रू। द फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि V, ये रहा आपका V, दैट मीन्स सेकेंड एंड फोर्थ पोजिशन पे जो भी अल्फ़ाबेट्स है उन दोनों की अगर हम लेंथ निकालें दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और यू कैन से इट मस्ट बी V Y। कई जगह आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रेटर देन 0, तो दैट मीन्स क्या हुआ, 0 नहीं हो सकता, 0 से कितना भी बड़ा होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब 1 से स्टार्ट। तो देखिए कुछ भी लिखा हो, बोथ आर सेम थिंग। इफ इट इज रिटन हियर लाइक मॉड VY ग्रेटर देन 0, और यू कैन से मॉड VY ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ना यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस कंडीशन को जस्टिफाई करना ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज़ कि जब हम स्ट्रिंग को ब्रेक करेंगे यहाँ पर, तो आपने देखा कि 5 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। जब ब्रेक करेंगे तो ध्यान रखिएगा V एंड Y, दैट इज़ अ सेकेंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पे जो भी सिंबल है, आपने ABCDE लिया है तो उसमें भी ध्यान रखिएगा सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे जो भी सिंबल है, आप इन दोनों को, बिकॉज यहाँ पे इसकी लेंथ, पहली कंडीशन क्या है, इन दोनों की लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकती, दैट मीन्स V and Y cannot be epsilon simultaneously। आप इनको एक साथ एप्सिलॉन नहीं ले सकती। इफ यू आर गोइंग टू चूज बोथ आर एप्सिलॉन देन द लेंथ विल बी 0। मीन्स यहाँ पे हम कहेंगे कि V इक्वल टू एप्सिलॉन और Y इक्वल टू एप्सिलॉन, और लगाया है मैंने बीच में, ध्यान रखिएगा। दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता, बट अगर आपको 1 लेंथ दिखानी है तो किसी एक को आप एप्सिलॉन ले सकते हैं उस समय, और दूसरे को आपको कुछ लेना होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें V इक्वल टू एप्सिलॉन एंड Y इक्वल टू एप्सिलॉन, देन दिस कंडीशन इज फॉल्स फॉर। अगर आपने ऐसा कुछ चूज कर लिया कि भाई दोनों को ही एप्सिलॉन ले लिया, तो इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन जो आपने ली है वो फेल हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा ये वाला जस्टिफाइड नहीं होगा। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि V कैन नॉट बी एप्सिलॉन एंड Y कैन नॉट बी एप्सिलॉन, यानी आपने दोनों को भी 1 लेंथ का अल्फ़ाबेट ले रखा है या कैरेक्टर ले रखा है, यहाँ पे आप ले सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि दोनों में से किसी एक को एप्सिलॉन लेना है, आप दोनों को ही एप्सिलॉन मत लीजिए, लेकिन अगर आपको एप्सिलॉन लेना है तो किसी एक को लीजिएगा। फर्स्ट कंडीशन ये है, क्योंकि लेंथ हमारी मिनिमम 1 होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेकेंड कंडीशन CFG के पंपिंग लेमा में, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे कि अब आप देखें यहाँ पे VXY पार्ट क्या होगा हमारा, ये वाला, दैट मीन्स सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का जो कॉम्बिनेशन होगा उसकी जो लेंथ होनी चाहिए, आई मीन जो आप ब्रेकअप करेंगे, ध्यान रखिएगा ऐसा ब्रेकअप करना है, VXY को ऐसा चूज करना है कि इनका जब हम मॉड निकालें तो P से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, बट उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपका U एंड Z जो है वो कम्प्लीटली फ्री है, रिमेनिंग लेंथ आप Z और U में डाल सकते हैं। तो पहले जब भी हम स्ट्रिंग का ब्रेकअप करेंगे, फॉर द स्ट्रिंग ब्रेकअप, आई मीन व्हेन वी आर गोइंग टू ब्रेक द गिवन स्ट्रिंग, आई मीन जो भी इस लैंग्वेज से आपने एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ली है, अगर आप उसे ब्रेक करने जा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि VXY को इन 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग ही पहले जस्टिफाई कर लोगे। माइंड में आपको पहले से ही कैलकुलेट करना होगा कि भाई मुझे जो ब्रेकअप करना है, ये नहीं कि स्ट्रिंग देखी फटाफट किसी को भी, जैसे यहाँ पे जनरली बच्चे क्या करते हैं, सपोज करो W इक्वल टू, मैंने यहाँ AABBCC ले लिया, तो वो क्या करेंगे, U इक्वल टू A ले लिया, B इक्वल टू, चलो V इक्वल टू इन्होंने यहाँ पे AB ले लिया, देन यहाँ पर
x इक्वल टू बी ले लिया एंड y इक्वल टू भी बी ले लिया एंड z इक्वल टू भी आपका z में क्या बचा, सॉरी यहाँ b हो गया तो यहाँ पे c ले लिया और ये c ले लिया। इन्होंने ऐसा ब्रेक कर दिया। अब देखिए जब हमने यहाँ पे रेंडमली ऐसे ही कुछ भी ले लिया, माइंड में सोचा नहीं कि क्या ये सेटिस्फाई होगा, लेट्स सी दैट कि क्या जो हमने किया जस्टिफिकेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी। अब आप देखिए v एंड y की लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं तो v कितना है यहाँ पर ab है, तो ab हमने लिया दैट मीन्स ab, y कितना है दैट इज अ c, तो आप देखिए कितना लेंथ हो गया 3 हो गया एंड 3 इज ग्रेटर देन 0, यस करेक्ट, ये कंडीशन सेटिस्फाई है, फर्स्ट कंडीशन ओके हो गई। बट लेट्स टेक द सेकेंड कंडीशन दैट इज अ v x एंड y, इसकी लेंथ को कैलकुलेट करें अगर हम तो v की वैल्यू है हमारे पास ab, x जो है हमारा b एंड y जो है हमारा वो c है। अगर हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करें तो 4, और यहाँ पे मैंने p की बात नहीं करी क्योंकि स्ट्रिंग हमारी क्या है यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो ये जो पावर आपने रिप्लेस करी n की वैल्यू आपने चूज करी फॉर दिस स्ट्रिंग दैट इज 2, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब आप देखिए सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि आपकी जो v x y की लेंथ आनी चाहिए, इन तीनों को मिला के जो लेंथ आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे आ रहा है 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है, विच इज़ अ रॉन्ग, आई मीन इट इज़ नॉट ट्रू। तो आपने जब ऐसा ब्रेक किया, आपने सोचा नहीं, बस रेंडमली किसी में भी कोई भी वैल्यू आपने स्टोर कर दी और आपने कहा जी मैंने तो ब्रेकअप कर लिया और मैंने प्रूफ कर दिया कि ये लैंग्वेज पंपिंग लीमा को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट इज़ द रॉन्ग। तो जब भी आप ब्रेकअप करेंगे आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आप मान लीजिए आपकी फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो ही जाएगा अगर आपने लेंथ बड़ी ली है, सेकेंड कंडीशन भी आपको माइंड में रख के लेनी होगी कि भाई इन तीनों की जो लेंथ है वो p से छोटी आनी चाहिए, जो ये तीनों को रखेंगे वॉट एवर वैल्यू यू आर गोइंग टू पुट इन दिस दैट मस्ट बी लेस देन द p आपको पता होना चाहिए कि p क्या है, तो दैट इज नथिंग बट हियर 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन p विल वेरी, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए सेम होगा। तो दिस इज द कंडीशन हियर सेकेंड। नाउ कंडीशन 3 uv की पावर i x y की पावर i z, दैट्स व्हाट आई टोल्ड इन द प्रीवियसली कि हमारा जो v है एंड y है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट टेक एप्सिलॉन साइमल्टेनियसली। रीजन क्या है, देखिए आप इनकी पावर हम पंप कर रहे हैं, जिसके सर के ऊपर i लगा हुआ है ना, यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पावर पे क्या आई, दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द v एंड y, दैट मीन्स सेकेंड एंड फोर्थ पोजिशन पे जो भी सिंबल यहाँ पर बैठा है वी आर गोइंग टू स्ट्रेच दैट, और वो जो स्ट्रेच करने के बाद एक जो नई स्ट्रिंग जनरेट होगी वी विल चेक दैट फॉर ऑल आई मीन आई की हर एक वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे कि जो भी नई स्ट्रिंग जनरेट करेगा आई की जो भी वैल्यू आप चूज करेंगे हम चेक करेंगे कि जो न्यू स्ट्रिंग जनरेट होगी विल इट बिलोंग्स टू द एल और नॉट। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो आप कहेंगे यस इट इज अ पंपिंग, आई मीन दैट लैंग्वेज इज अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। अगर ये बिलोंग नहीं करेगा, एक के लिए भी फेल हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये पंपिंग लीमा के थ्योरम को फेल कर रहा है, तो ये जो लैंग्वेज है वो CFG नहीं है। तो लेट्स ट्राई द सेम क्वेश्चन, यहाँ पे जो हमने a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n लिया, इसी को ट्राई करते हैं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस थ्योरम। किसी को कोई डाउट है? नोबडी इज आस्किंग, देन आई विल टेक द क्वेश्चन हियर। ना यहाँ पे क्या है हमारे पास जो क्वेश्चन है, मैम अगर a की पावर n है और b की पावर m है तो उसमें p क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन अभी आएगा तो मैं बताऊंगी, फिलहाल अभी ये देखो जो क्वेश्चन लिया है हम यहाँ पर, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था जब हमने रेगुलर लैंग्वेज में पढ़ा था, हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिसके लिए हमें फाइनाइट ऑटोमेटा हम डिज़ाइन नहीं कर पा रहे थे। दैट मीन्स हमें ये पता है कि अगर किसी की रेगुलर लैंग्वेज बन रही है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर RA है दैट मीन्स रेगुलर लैंग्वेज है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिज़ाइन द फाइनाइट ऑटोमेटा। इसी तरह से अगर कोई लैंग्वेज CFL है, अगर कोई लैंग्वेज है और वो CFL है, अगर वो CFL है देन ओनली वी आर गोइंग टू डिज़ाइन द PDA। और उल्टा अगर हम बात करें कि अगर PDA हम उसका डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम उसका CFL बोल सकते हैं। दैट मीन्स इफ PDA इज़ पॉसिबल, दैट मीन्स पुश डाउन ऑटोमेटा अगर हम डिज़ाइन कर पाएंगे किसी भी ग्रामर के लिए तो हम कहेंगे कि वो ग्रामर जो है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है। इसी तरह से जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिज़ाइन द फाइनाइट ऑटोमेटा। और यू कैन से अगर फाइनाइट ऑटोमेटा किसी के लिए हमने बना सकते हैं तो इट मस्ट बी अ रेगुलर लैंग्वेज। दैट मीन्स
रेगुलर लैंग्वेज होगा। अब आपने कहा अगर a की पावर n b की पावर m है तो ये तो आपका क्या है, ये तो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है ही है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है ही है। हम इसे प्रूफ नहीं करेंगे, तब यहाँ पर हम इस थ्योरम का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। हम इस थ्योरम का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें ये प्रूफ करना होता है कि द गिवन लैंग्वेज इज नॉट द कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। आपने देखा होगा, मैंने इतने दिन से CFG पढ़ा रही हूँ, बट मैंने आपको कहीं पर भी a की पावर n, b की पावर n एंड c की पावर n के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए जिसका ग्रामर जनरेट करना हो। मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया। हाँ, बट आपको मैंने a की पावर n, b की पावर m, c की पावर l करके क्वेश्चन ज़रूर दिया था, या a की पावर n, b की पावर n, c की पावर m करके क्वेश्चन ज़रूर दिया था। आई मीन दीज टू लैंग्वेजेस आर द कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एस इक्वल टू द नंबर ऑफ बीस हम यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में जितने ए हैं उतने हम बी को ले सकते हैं। अगर हमने तीनों को बराबर ले लिया तो हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि हम बी के बराबर सी को निकाल पाएँ या सी के बराबर बी या ए को निकाल पाएँ। इसके लिए मैं आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, व्हेन वी डिस्कस दिस PDA आई विल टेल द सोल्यूशन फॉर दिस a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n। और हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन के लिए हम PDA नहीं बना पाएंगे। PDA बनाएंगे बट सिंगल स्टैक PDA नहीं बना पाएंगे। सिंगल स्टैक PDA is not possible for a to the power n, b to the power n and c to the power n। बट ऐसा नहीं है कि हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टू स्टैक PDA जिसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n। बट अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की a टू द पावर n, b टू द पावर n एंड c टू द पावर n, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ b है, बट c की वैल्यू चेंज हो सकती है। c कैन बी 1, 2, आई मीन इन तीनों में इक्वालिटी वाली कंडीशन नहीं आ रही। फॉर दिस वी कैन डिजाइन हियर सिंगल स्टैक PDA। आई विल टेल कि व्हाट इज दिस सिंगल स्टैक PDA, बट अभी आपने पूछा इन बिटवीन तो मैंने यहाँ पे रिप्लाई किया है। ये जो आपका है a की पावर n, b की पावर n, ये ऑलरेडी CFL है। इसको मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये CFL नहीं है। पंपिंग लेमा इज बेसिकली यूज फॉर टू प्रूव द निगेटिव थिंग। आई मीन जो चीज़ें कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं, हम उनको प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से रेगुलर लैंग्वेज में भी पंपिंग लेमा का जो इस्तेमाल किया था वो सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए किया था कि द गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। आपने देखा था मैंने वहाँ पे प्रूफ किया था a की पावर n, b की पावर n को लेके प्रूफ किया था, और इसको मैंने पंपिंग लेमा की मदद से प्रूफ किया था कि दिस लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर। क्योंकि हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज में ऐसा कोई मेथड नहीं है कि नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ b को काउंट कर पाए। बट इस क्वेश्चन को मैंने CFL में सॉल्व किया था कि इसकी ग्रामर कैसे बनेगी, और आपने बनाया भी था। s टेंस टू आपने क्या ले लिया था, ASB ले लिया था, एंड देन इसको एक बार एप्सिलॉन ले लीजिए। उसके बाद ये रिपीट होता रहेगा, और आप देख लीजिए कि इसके लिए अगर हम ग्रामर डिज़ाइन कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ अ CFL। a टू द पावर n, b टू द पावर n इज अ CFL, बिकॉज हमने इसके लिए ये ग्रामर डिज़ाइन, मैंने केवल प्रोडक्शन लिखा, ग्रामर आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, ऑलरेडी आपने लर्न कर लिया है। तो ना यहाँ पे ASB इसके लिए हमने, और जिसके लिए हम नहीं बना पाएंगे a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n का ग्रामर नहीं पॉसिबल है कि कैसे हम तीनों को एक साथ इक्वल करेंगे। बट वी कैन डू इन द PDA ऑल्सो, दैट मीन्स टू स्टैक लेंगे, और टू स्टैक PDA का भी ग्रामर डिज़ाइन होता है, ऐसा नहीं है। बट दिस इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ द सिंगल स्टैक PDA। वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस में टू स्टैक नहीं है। और ये टू स्टैक, सिंगल स्टैक से जब आप टू स्टैक पे जा रहे हो, फिर कई प्रॉब्लम ऐसे हैं जो टू स्टैक से भी सॉल्व नहीं होंगे, 3 स्टैक पे चले जाएंगे, 3 से भी नहीं होता, 4 स्टैक से। जैसे जैसे हम स्टैक बढ़ाते जा रहे हैं उसकी कॉस्टिंग, यानी मशीन की कॉस्टिंग। अब आप सोच रहे हो कि स्टैक क्या है, आप लोगों ने ऑलरेडी डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। इट्स लाइक एक कंटेनर होता है जिसमें पुश एंड पॉप का आप ऑपरेशन अप्लाई करते हो। आइदर यू आर डूइंग द पुश और पॉप करते हो। दैट मीन्स इसमें केवल एक ओपन एरिया होता है जहाँ से हम सामान अंदर डालते हैं, बाहर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, हम काउंटिंग इसी से करेंगे कि हमने कितने अंदर डाले, कितने बाहर निकाले, वो हम काउंट करेंगे। तो आपने देखा कि अभी देखेंगे कि ये इस वाले a टू द पावर n, b टू द पावर c टू द पावर n को हम इससे सॉल्व कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे इस मेथड से, तो हम क्या करेंगे, 2 कंटेनर ले लेंगे, और 2 कंटेनर लेंगे। हमने यहाँ पर a लिया, a को अंदर किया, फिर उसके इक्वलेंट यहाँ पर b और c को बाहर निकालेंगे, कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जब एक हमने अलग से मेमोरी यहाँ पे डाली तो ऑब्वियस है आपके सिस्टम की कॉस्ट बढ़ गई। अब मैंने कहा मेरे लैपटॉप में भाई एक स्टैक से काम नहीं चल रहा, मुझे एक और
पॉट की ज़रूरत पड़ रही है, एक और मेमोरी की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप ज़रा सोचिए कि एक काम करने के लिए अगर आप 10 रुपये पहले खर्च कर रहे थे इसको ख़रीदने के लिए, अभी आपकी कॉस्टिंग 20 रुपये हो गई। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जो 1-2 से भी नहीं काम चलेंगे, तीसरे को भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप सोचो उसकी लगा लेंगे तो 30 रुपीज़ हो गए। जैसे जैसे आप अपने सिस्टम में स्टैक का मतलब यहाँ मेमोरी से है, तो मेमोरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉस्टिंग सिस्टम की बढ़ती जाएगी। और आपको पता है कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में अगर हमारा जो मेन टारगेट होता है वो ये होता है कि हम चीज़ों की कॉस्ट कटिंग करें, आई मीन कम करें। और अगर आपने ऐसा कुछ डिज़ाइन कर लिया कि जिसकी वजह से आपका कॉस्ट भी कम हो रहा है, आपकी प्रोसेसिंग भी कम हो रही है, तो हम कहते हैं दैट इज़ नथिंग बट द ऑप्टिमाइजेशन मैथड। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस मोमेंट पे पीडीए को फेल कर दिया गया, जैसे एफए फेल हो गया था कुछ क्वेश्चंस के लिए। जब हम 2-3 स्टैक्स की बात करते हैं एक सिंपल से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ मेमोरी टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, यहाँ पर पीडीए भी फेल हो गया ऑटोमेटा में। तब तीसरा कॉन्सेप्ट आया हमारे पास ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन में ये खास बात थी कि हम लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं, राइट भी मूव कर सकते हैं, और इसमें हमें किसी भी कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारा जो इनपुट टेप था वो इटसेल्फ अपने आप में सफिशिएंट था, आई मीन केवल इनपुट टेप से ही काम चल गया, उसमें किसी भी इस तरह के स्टैक की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने सिंगल क्या, आई मीन यहाँ पर 2-3 कंटेनर को छोड़ो, उसने ये जो सिंगल कंटेनर था इसे भी रिमूव कर दिया और बोला वॉट एवर स्पेस वी हैव टू स्टोर, क्योंकि हम स्ट्रिंग ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसने मेमोरी में जगह ली होगी, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं चाहिए, जो इनपुट टेप है उसी से काम कर लेंगे। वो एक बार लेफ्ट जाएगा, एक बार राइट जाएगा, वेन एवर यू रिक्वायर्ड टू मूव लेफ्ट राइट करके वो काम कर लेगा। हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे ट्यूरिंग मशीन काम करेगी। फिलहाल हम वापस आ जाते हैं कि कैसे यहाँ पर हम प्रूफ करते हैं पंपिंग लेमा को, क्योंकि किसी ने पूछा। लेट्स सी दैट कि सो दैट क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा आपका कुछ ऐसे आएगा, सो दैट L इक्वल टू a to the power n, b to the power n, c to the power n such that n is greater than equal to 0 is not CFG। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उसको कुछ डाउट क्लियर हुआ बेटा? वॉट एवर आई टोल्ड? यस मैम। नाम क्या है बेटा आपका? अभिषेक। अभिषेक। अभी स्टेप बाय स्टेप पीडीए जब करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन, ये जो मैंने अभी ओरली आपको बोला है, मैं न्यूमेरिकली करके दिखाऊंगी और आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं ना। अब हमें इस क्वेश्चन को ये प्रूफ करना है कि दिस इज़ नॉट CFG। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो L कंटेन क्या करेगा हमारा, दैट इज़ नथिंग बट द, सबसे पहले अगर n की वैल्यू 0 रखो तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 0, b की पावर 0, c की पावर 0, एंड देन नेक्स्ट क्या आएगा, a b c 1 रखोगे, देन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एंड a क्यूब b क्यूब c क्यूब, लाइक दैट। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि a फॉलोड बाई b, b फॉलोड बाई c, इनका सीक्वेंस आप नहीं बदल सकते। इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज नथिंग बट द एप्सिलॉन। किसी की पावर एप्सिलॉन है तो ये भी एप्सिलॉन हो गया, ये भी एप्सिलॉन इंटू दैट इज नथिंग बट द एप्सिलॉन ओनली। तो फर्स्ट स्ट्रिंग इसकी क्या बन गई, सिंगल एप्सिलॉन कॉमा a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, दैट मीन्स मिनिमम स्ट्रिंग विल बी एप्सिलॉन। नाउ हमारे पास मिनिमम स्ट्रिंग आ गई, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, आप n की वैल्यू बढ़ाते जाइए आपको मिलता जाएगा। अब मैंने कहा कि अगर ये हम मान के चलते हैं कि गिवन है, गिवन L इज CFL, दैट मीन्स कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, हम मान के चल रहे हैं कि ये जो हमें तो प्रूफ करना है कि हमने ये माना कि ये भाई CFL है। अगर ये CFL है तो पंपिंग लेमा से जो भी थ्योरम हम अप्लाई करने जा रहे हैं उसकी मदद से भी ये प्रूफ हो जाएगा कि भाई तुम CFL हो। लेकिन अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग ले ली a स्क्वायर b स्क्वायर, या चलिए बड़ी स्ट्रिंग ले लेते हैं कि आप सोच रहे होगे कि यही ले रहे हैं। तो नाउ नेक्स्ट यहाँ पे मैंने W चूज कर लिया। आउट ऑफ दिस गिवन स्ट्रिंग यू कैन टेक एनी वन स्ट्रिंग। तो एल्गोरिथम में क्या कहता है, टेक एनी वन स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन लैंग्वेज, आई टुक हियर a क्यूब b क्यूब c क्यूब। अब ये जो W है इसको हम क्या करेंगे, 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज अ u v x y एंड z हमने यहाँ पर ले लिया। और हमारी जो स्ट्रिंग है, आई मीन u v x y यहाँ पर है a ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, आई मीन इसको हमने इसके इक्वलेंट डाल दिया। दैट मीन्स अब हमें ये देखना है कि हमारी पहली कंडीशन की क्या थी, हमने फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ वी वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन मैंने लिखा था यहाँ पे, सेकेंड कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखा था दैट इज नथिंग बट द वी
एक्स वाई लेस देन इक्वल टू पी, जस्ट होल्ड डाउन 1 minute. हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो, मैं क्लास में हूँ बेटा, मैं क्लास में हूँ, मैं बात कर, आपकी जो मर्जी, ठीक है। नाउ यहाँ पे थर्ड स्टेप वी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू पी, एंड नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन थी दैट इज अ यू वी टू द पावर आई एक्स वाई टू द पावर आई जेड बिलोंग्स टू एल, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है ट्रिपल ए, साइड में लिख रही हूँ मैं ट्रिपल सी। ना यहाँ पे अब हमें ये माइंड में रखना है कि इन दोनों की जो लेंथ होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यू कैन टेक, और दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है वी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू पी। अब देखिए यहाँ पे p की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि मैंने पावर कितनी ली है यहाँ पे 3। n की वैल्यू जो मैंने चूज़ करी है फॉर दिस स्ट्रिंग दैट इज़ नथिंग बट द 3, तो मैंने p चूज़ कर लिया, यहाँ पे 3 हो गया। अब देखिए p यानी कि हमें इसको तो छोड़ ही दो, ये ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। सेकेंड कंडीशन पे दिमाग यहाँ पे लगाते हैं वी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू पी। ना यहाँ पे v लेस देन इक्वल टू पी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि मुझे इन तीनों को कुछ ऐसा चूज करना है कि भैया इनकी लेंथ जो है 3 तक ही आए, 3 से ऊपर न जाए, लेस चलेगा। तो लेट्स से कि मैंने इन दोनों को ले लिया u, डबल a को ले लिया, एंड देन सिंगल को मैंने ले लिया v, एंड देन उसके बाद आ जाएगा x, और इस वाले को मैंने ले लिया y। बाकी यहाँ पे b से लेके c तक को मैं ले रही हूँ यहाँ पे z। आप कुछ भी ले सकते हैं। देखिए मैंने इसको माइंड में रखा है कि भाई मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि अगर v को 1 लेटर दे दिया, x को 1 लेटर दे दिया, y को 1 लेटर दे दिया, तो 3 ही हो सकता है। आप इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो। आई एम गोइंग टू सजेस्ट वन मोर स्टेप, b b b c c c। आप ऐसा भी कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, इसे u ले लीजिए, इसे मैंने यहाँ पर लिख दिया x, और इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया y, और रिमेनिंग को मैंने z कर दिया। और मैंने कहा मैंने यहाँ पे v को एप्सिलॉन ले लिया, कुछ भी नहीं लिया। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं बात करूँ u तो डबल a हो गया, और v जो हो गया आपका a, x हमने ले लिया b, एंड y हमने ले लिया b, एंड z इज नथिंग बट b ट्रिपल c। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम चेक करें कि हमने यहाँ पे क्या लिया, u को हमने ट्रिपल a ले लिया। ये केस 1 है, यू कैन से केस 1 हमने ब्रेकअप किया। आप किसी भी केस से ब्रेकअप कितने भी कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जिसकी जो मर्जी। यहाँ पे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करके दिखाए, यू कैन टेक एनी मैथड। बस ये ध्यान रखना होगा कि कंडीशन सेकंड फेल नहीं होनी चाहिए जो भी ब्रेकअप आप स्ट्रेटजी अपनाएं। यहाँ पे v हम ले रहे हैं एप्सिलॉन, x हमने ले लिया है सिंगल b, y हमने लिया है सिंगल b, एंड z को हमने ले लिया है b ट्रिपल c। ये तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फर्स्ट कंडीशन की, आई विल चेंज द कलर देन यू विल अंडरस्टैंड। आप देखिए फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई होनी है। वी वाई अगर हम निकालें यहाँ पे तो दैट इज़ नथिंग बट यहाँ पे v की जो लेंथ है a है और y भी a है, तो 2 आ जाएगी। आप देख सकते हैं 2 सिंबल हैं, मॉड करोगे लेंथ आ जाएगी। इसी तरह से सेकेंड केस क्या है, यहाँ पे वी एक्स वाई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या चीज़ आएगा, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ। तो आप डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ 3 आ गया, विच इज़ नथिंग बट द लेस देन इक्वल टू p। p की वैल्यू कितनी थी, 3, दैट मीन्स 3 इक्वल टू 3, दैट मीन्स दिस कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाई। आई मीन हमने जो ब्रेकअप लिया था फर्स्ट केस, वो दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है 1 and 2, यानी कि हमारा जो पार्टीशन हुआ है स्ट्रिंग को, जो 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, इट इज़ अ होल्डिंग बोथ द कंडीशन, देन दैट पार्टीशन इज ओके। हमारी इन 2 कंडीशन सेटिस्फाई। लेट्स सी द सेकेंड केस, इसमें भी चेक कर लेते हैं क्या इसको हमने सही तरीके से किया है। तो आप देख सकते हैं वी वाई की अगर हम लेंथ निकालें बेटा यहाँ पे, तो v कितना है, एप्सिलॉन है, आप यहाँ पे एप्सिलॉन रख दोगे, और y को मैंने लिया है सिंगल b, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू b इज नथिंग बट द b आएगा, और b का मतलब 1 हो गया। लेंथ क्या आई 1,
विच इज़ अ ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन भी सही हो गई। मैंने आपसे पहले भी कहा था v और y में से किसी एक को एप्सिलॉन आप चूज कर सकते हो जिसकी लेंथ आपकी, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर x को 0 नहीं ले सकते, एप्सिलॉन नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। आप v को u को डबल ए ले लीजिए, और सॉरी v को डबल ए ले लीजिए, y को b ले लीजिए, 3 तो भी हो जाएगा। तो क्योंकि देखिए जिनके ऊपर i लिखा है केवल उनको हम दोनों एक साथ नहीं ले सकते, बाकी किसी को भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आएगा v x y निकालते हैं। इनकी अगर हम लेंथ निकालें तो v एप्सिलॉन हो गया, x b हो गया और y भी b हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे 2 आ रहा है विच इज़ अ लेस देन इक्वल टू p, क्योंकि p की वैल्यू 3 है। तो आप देखेंगे ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यानी जो मैंने केस 1 एंड केस 2 चूज़ किया था वो ओरली मैंने अपने माइंड में कैलकुलेट करके इनकी वैल्यू ऐसे ली थी, बट स्टिल मैंने यहाँ पे आपको शो करके दिखाया कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 इन दोनों ही केसेस में सेटिस्फाई हो गया। अब आप इन दोनों में से किसी एक केस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे केवल एक को आपको दिखा रही हूँ। ना यहाँ पे मैंने मान लीजिए केस 1 लिया है, इसमें जो भी हमारे पास वैल्यू है u v x y एंड z जो भी हमने चूज़ किया। अब हम थर्ड केस पे जाएंगे। थर्ड केस कहता है u v टू द पावर i देन x y टू द पावर i एंड z बिलोंग्स टू l हमें चेक करना है। तो लेट्स सी कि हमने i की वैल्यू 0 ले ली, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो लैंग्वेज है इट मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल i ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी दैट कि अगर i की वैल्यू हमने 0 रखी, पहले तो हम ये स्ट्रिंग लिख लें। दैट इज़ अ u की वैल्यू कितनी है डबल a, v की वैल्यू कितनी है सिंगल a की पावर i, x कितना है यहाँ पर, x है b एंड y की वैल्यू भी b है और इसकी पावर i आ गई। z जो है हमारा b c c ट्रिपल c है। ये हमारी स्ट्रिंग है। आई मीन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग जो पार्टीशन हमने किया उसके अकॉर्डिंग हमने स्ट्रिंग बना ली इसके स्टैंडर्ड में। तो हमारे पास अब हमने i की वैल्यू 0 ली, तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी डबल a, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन, किसी की भी पावर 0 होती है तो एप्सिलॉन आ जाएगा। b ये भी क्या हो जाएगा एप्सिलॉन हो जाएगा एंड b c c c। तो अब आप देखिए ये क्या आएगा डबल a आएगा, डबल b हो जाएगा, डबल नहीं ट्रिपल c होगा। अब आप देखिए ऐसा कोई भी लैंग्वेज में स्ट्रिंग नहीं है जिसमें नंबर आई मीन डबल a डबल b और ट्रिपल सी हो, क्योंकि नंबर ऑफ ए इक्वल टू द नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सी, तीनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं आया। दैट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग्स टू एल, हमने यहाँ पे लिख दिया। लेट्स से एनीथिंग एल्स, सपोज करो मैंने यहाँ 2 ले लिया, तो 2 ले लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा डबल ए और यहाँ से आ जाएगा ये सिंगल ए, अगेन बी आया और यहाँ से भी क्या आएगा, अगर हमने आई की वैल्यू 1 ली है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा b एंड देन ये b पहले से ट्रिपल सी। अब आप देखिए जब i की वैल्यू 1 ली तो ये देखिए स्ट्रिंग जो आई है दैट बिलोंग्स टू l, ओके नो इशू। अगर हम यहाँ पर i की वैल्यू 2 ले लेते हैं, आपको 2 या 3 स्ट्रिंग बना के दिखानी पड़ेगी बेस्ड ऑन द ये फॉर्मूला जो हमने बनाया है। दैट मीन्स अब अगर हमने a लिया और बोला i की वैल्यू 2 ले लीजिए फॉर i इक्वल टू 2, दैट मीन्स a स्क्वायर हो जाएगा और ये b इसी तरह से ये b स्क्वायर आ जाएगा, b ट्रिपल c हो जाएगा। लेट्स कैलकुलेट इट, 2 टाइम्स 2 टाइम्स दैट इज a टू द पावर 4, 2 2 4 b की पावर 4 और c क्यूब आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर a और b तो इक्वल हैं बट c यहाँ पर डिफरेंट है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट बिलोंगिंग टू द l। तो आपने देखा सबसे पहली चीज़ मैंने आपको यहाँ पे 3 स्ट्रिंग है इसलिए करके दिखाया, दिस इज नथिंग बट द i इक्वल टू 1, क्योंकि आप यहाँ पे कहोगे एक ही बार तो फेल हुआ तो ये लैंग्वेज तो एक्सेप्ट हुआ, नो वंस। देखिए फॉल्स होने के लिए अगर एक भी स्ट्रिंग जो इससे जनरेट हो रही है आफ्टर द पंपिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग इन दिस लैंग्वेज वॉट एवर द लैंग्वेज इज गिवन हियर, दैट मीन्स ये कंट्राडिक्ट हो गया। अगर ये एक के लिए फेल हुआ तो हम सबको, भले यहाँ पर ये वाला प्रूफ हो रहा था कि ये बिलोंग कर रहा है, ये वाला नहीं, आप 3 ले लीजिए 4 ले लीजिए, किसी के लिए भी बिलोंग नहीं करेगा। तो आपने देखा फाइनली यहाँ पे क्या आया, हम लेके चले थे कि L जो है CFL है, बट हमने जितनी भी स्ट्रिंग कैलकुलेट करी एक्सेप्ट 1, बाकी सारी स्ट्रिंग्स क्या आ रहा है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू L, देयरफॉर L इज नॉट CFL। दिस इज द वे यू कैन प्रूव दैट कि L जो है आपका CFL नहीं है, ये आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो बाय दिस मैथड यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन जिसमें भी ये पूछा जाए कि यहाँ पर जो L है वो आपका CFL है कि नहीं। प्रोसीजर